আশীর্বাদ এবং আপনাদের সকলের আশীর্বাদে এগিয়ে চলেছি, রাইট? তো যার জন্য এত সুন্দর পরিবার পাওয়া, যার জন্য এই প্ল্যাটফর্মটা পাওয়া, মোদি কেয়ার ইন্ডিয়াতে আসা, সো ওয়ান অ্যান্ড অনলি মাই গ্রেট আপলাইন মিস্টার দিবাকর মন্ডল, তার জন্য একটা ক্ল্যাপস আমার তরফ থেকে, এবং সবাইকে বলবো একটা ক্ল্যাপস দেওয়ার জন্য দিবাকর স্যারের জন্য। আজকে ওয়ান টিম ওয়ান ড্রিম এর পক্ষ থেকে এই ট্রেনিং সেশন প্রতিনিয়ত আমরা পাচ্ছি। তো যিনি, যার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং যার টোটাল প্রিপারেশনে আজকে আমরা এই এত সুন্দর জুমের মাধ্যমে ট্রেনিং নিতে পারছি, তো ওয়ান টিম ওয়ান ড্রিমের কর্ণধার, গ্লোবাল ব্ল্যাক ডায়মন্ড ডিরেক্টর, স্ম্যাক মেম্বার মিস্টার চঞ্চল স্যারের জন্য সবাইকে বলবো একটা জোরে হাততালি দেওয়ার জন্য। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং আপনাদের প্রত্যেকের আপলাইন, অর্থাৎ যাদের জন্য আপনারা এই পরিবারের সদস্য হয়েছেন, মোদি কেয়ার ইন্ডিয়া গ্রুপের একজন কনসালটেন্ট হিসেবে জয়েন করেছেন, অর্থাৎ আপনাদেরকে যে সুযোগটা তুলে দিয়েছে, যাদের হাত ধরে আপনারা সুযোগটা পেয়েছেন, তাদের জন্য আপনাদের যে যেখানে আছেন সেখানে আপনি একটা ক্ল্যাপস দিন তার জন্য, রাইট? তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এরকম প্রতিনিয়ত আমাদের সেশন চলছে ওয়ান টিম ওয়ান ড্রিমের পক্ষ থেকে। তো আজকে যে সেশনটা আমরা নিতে চলেছি, ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট একটা সেশন, কারণ আমরা সাধারণ লাইফ লিড করতাম, আমরা মোদি কেয়ারে এসেছি, ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি। তো ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আমারও সেরকম, আমি যখন নতুন ছিলাম বা এখনো অনেক কিছুই জানা হয়নি, শিখছি ধীরে ধীরে। তো আমরা এই কাজ করতে গিয়ে ছোট ছোট কিছু অজান্তে মিস্টেক করে ফেলি। এই ছোট ছোট যে মিস্টেক গুলো করি আমাদের অজান্তে, অবচেতন মনে, সেই মিস্টেক গুলো যদি আমরা না করি তাহলে কিন্তু আমরা আরো ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারি। তো সেই ছোট ছোট মিস্টেক গুলো কি, যেগুলো আমরা নিজেদেরকে শুধরে নিতে পারি, সেই পয়েন্টস নিয়ে যিনি আসছেন আজকে ট্রেনার হিসেবে আছেন, উনি বলবেন। এবং সেকেন্ড পার্ট, আমরা প্রত্যেকে বিজনেস করছি, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে হোম মিট করছি, বাড়িতে যাচ্ছি, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে আমারও হয়েছে সাকসেসফুল রেজাল্ট পাচ্ছি না হোম মিটিং এ গিয়ে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে। তো কেন? কিছু তো একটা মিস্টেক হচ্ছে, বা কিছু তো একটা পয়েন্ট, বা আমরা কিভাবে বলছি তার উপর নির্ভর করছে। তো আজকে আমরা যদি 10টা হোমমেড করি, 10টার মধ্যে 8টা যাতে সাকসেসফুল হোমমেড হয়, সেরকম কিছু প্ল্যানিং সেকেন্ড পার্টে আমাদেরকে দেখাবেন উনি। তো দুটো পার্টে আজকে ডিসকাশনটা হবে। আমি সবাইকে বলবো বাই হার্ট, একদম এখান থেকে নয়, এখান থেকে ট্রেনিংটা নিন, ডায়েরি পেন নোটবুক পেন ইউজ করুন, হাতের কাছে নোট ডাউন করুন, সেগুলোকে স্টাডি করবেন অবশ্যই, কারণ বিজনেসটা আপনার, ইনকামটাও হবে আপনার, রাইট? তো আপনি যত ভালো শিখবেন আগামী দিনে, আপনি তত আপনার পরিবারকে ভালো শেখাতে পারবেন, সন্তানদের ভালো শেখাতে পারবেন অটোমেটিক্যালি। কিন্তু সন্তানদের যদি মুখ উজ্জ্বল হয়, আপনার মুখ উজ্জ্বল হবে। তো আমি আর দেরি না করে সেই মহান লিডার, মহান ট্রেনারকে আমি ডেকে নেব, বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ট্রেনার। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ওয়ান টিম ওয়ান ড্রিম শুধু না, অল ওভার ইন্ডিয়াতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তার পারফরমেন্স দিয়ে, তার ট্রেনিং দিয়ে। আজকে প্রচুর মানুষ, আজকে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছি, সফলতার রাস্তা পাচ্ছি, ইনকাম পাচ্ছি, যেই মানুষটির জন্য, যেই তাকে আমি ডেকে নেব, ওয়ান এন্ড অনলি আমাদের ওয়ান টিম ওয়ান ড্রিমের ভীষণ প্রিয়, সকলের কাছের মিসেস দেবদ্যুতি সরকারকে। সো ওয়েলকাম আওয়ার জুম সেশন মিসেস দেবদ্যুতি সরকার, প্লিজ ওয়েলকাম ম্যাডাম। थैंक यू सो मच अरूप दा। आज का ये सेशन हिंदी में होने वाला है, क्योंकि ये जो लिंक है ये बाहर भी शेयर किया हुआ है, तो हम मिक्स एंड मैच करके हिंदी एंड थोड़ा बंगाली में मिक्स एंड मैच करके बोलेंगे। तो थैंक यू अरूप दा, इतनी अच्छी तरह से मुझे वेलकम करने के लिए। तो मैं और देरी ना करते हुए स्ट्रेट आज की ट्रेनिंग में चली जाती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो आज का जो सेशन होगा वो 2 पार्ट में होगा। एक है 10 कॉमन मिस्टेक्स। हम जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, हम कुछ कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं। वो मिस्टेक आगे जाके ना हो, इसे सुधारने के लिए हमें कौन सा मिस्टेक इन फ्यूचर होने वाला है, वो अगर पहले से ही पता रहेगा तो ये मिस्टेक होने की कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो हम वो 10 मिस्टेक्स क्या है वो हम देख लेते हैं। ये जो बिजनेस है ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है, पर हम जब काम करने के लिए स्टार्ट करते, ये बिजनेस को हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते।
सिंपल तो है पर इजी नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस फॉलो करके हमारा जितने भी सारा जो लीडर्स है, जो इस इंडस्ट्री में सक्सेस जिन लोगों को मिला हुआ है, उन्होंने जो भी काम किया है, हम अगर वही चीज को फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली हम सक्सेस पा जाएंगे। तो कंपनी ने एसपीबीएम के थ्रू एक बहुत ही बढ़िया एक सेशन हम लोग के लिए तैयार करके दिया हुआ है कि वो पहले से ही हमें पता हो कि हम वो चीज ना ही करें। तो क्या क्या है? नंबर 1, रीइन्वेंट द व्हील। हम जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो कभी कभी ये हम गलती कर लेते। से फॉर एग्जाम्पल हम हमारे प्रोफेशन में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सभी सोच लेते हैं कि हम हमारे फील्ड में बहुत ज्यादा कामयाब है, तो ये फील्ड में आके हम अपनी तरीके से कुछ नया सिस्टम बनाएंगे और वो सिस्टम को हम अगर फॉलो करेंगे तो हमको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में देख पा रहे एक जो साइकिल कोई चला रहे, एक बॉक्स तरीके से एक टायर को बनाया हुआ है। हम सभी को पता है जो साइकिल आगे जा सकते हैं, 2 चक्का जो होना चाहिए वो सर्कल होना चाहिए। तो हम अगर बॉक्स के साथ ये साइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, हमारा जो जर्नी होगा वो बहुत डिफिकल्टी में रहेगा। तो हमारा जो लीडर्स का जो टाइम टेस्टेड सिस्टम है वो अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी हम अपना जो सक्सेस हासिल कर पाएंगे। नंबर 2, मैं कुछ देर पहले ही कहा है कि ये जो बिजनेस है ये कोई भी कर सकता है। कोई एक हाउसवाइफ है वो कर सकता है, या कोई स्कूल स्टूडेंट है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई एम्प्लॉय है, सभी ये बिजनेस को कर सकते हैं, सबाई करते पारे। तो इसलिए क्या होता है, हम सीखने के लिए राजी नहीं रहते। ये जो बिजनेस है ये बिजनेस पहले अर्न हम नहीं कर सकते, पहले हमें लर्न करना पड़ेगा। लर्न होने के बाद ही अर्निंग ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल, हम सीखना नहीं चाहते और इस बिजनेस में हमें अगर सक्सेस मिलना चाहिए तो किसी को हमें एक मेंटर मानना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल हमारे एलओएस में जो कोई भी सक्सेसफुल है, जो कोई हमारे ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते, तो उनको हमको मेंटर मान के आगे बढ़ते रहना चाहिए। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, आप अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं हेल्प कर सकता है, पर आप अगर सीखना चाहते तो इस इंडस्ट्री में आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। तो ये हमें जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए। নাম্বার 3, থিঙ্কিং শর্ট টার্ম। আমরা কি করি, খুব কম টাইমে সাকসেস কি করে পাবো সেটা ভাবি। যেমন আমাদের আগে ছিল বাইনারি প্ল্যান। क्या होता था कि पहले हम शॉर्ट टाइम इनकम कैसे कमाएं ये सोचना स्टार्ट कर देते। ये जो इनकम का जो जरिया है ये कोई भी नॉर्मल बिजनेस की तरह एक प्रॉपर बिजनेस है। तो हमें यहाँ पर आके लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। मिनिमम 2 से 3 साल हम अगर इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद ही हम यहाँ से रिटर्न पा सकते हैं। यहाँ पर आप अगर हार्डवर्क प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सक्सेस मिलना बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ एक छोटा सा स्टोरी। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है चाइनीज बैम्बू ट्री। চাইনিজ ব্যাম্বু ট্রির একটা আমি ছোট গল্প বলবো। চাইনিজ ব্যাম্বু ট্রি সম্বন্ধে আমরা অনেকেই জানি। চাইনিজ ব্যাম্বু ট্রি কি হয়, আমাদের একটা বড় লেসন শেখায়। কি লেসন? क्या लेसन सिखाता है? ধৈর্য, বিশ্বাস এবং অধ্যবসায়, এই 3টে জিনিস আমাদের কিন্তু শেখায়। हम अगर चाहे तो चाइनीज बैम्बू ट्री को हमारे लाइफ का एक मेंटर मान सकते हैं। चाइनीज बैम्बू ट्री क्या होता है, पहले का जो 4 साल है वो बड़ा नहीं होता है। और जैसे नॉर्मली कोई भी ट्री को अगर बड़ा करना पड़ता है, क्या क्या जरूरत होता है, पानी की जरूरत होता है, अच्छा मिट्टी की जरूरत होता है, सनशाइन की जरूरत पड़ता है। चाइनीज बैम्बू ट्री को भी ये सब चीजों की जरूरत पड़ता है, पर जो 4 साल वो कोई ग्रोथ नहीं दिखाता है। और ये जो चीज हमें कंटिन्यूसली करना पड़ता है। पर 4 साल के बाद जब 5th ईयर आता है
5 বছরের মাথায় দেখা যায় যে 6 উইকের মধ্যে 80 ফিট চাইনিজ ব্যাম্বু ট্রি কিন্তু বড় হয়ে যায়। এই যে 80 ফিট, এটা কি আপনারা মনে করছেন যে এটা শুধু হচ্ছে 6 সপ্তাহই হয়েছিল? एक्चुअली এটা নয়। देखा जाता है जो पहले का जो 4 साल वो नीचे से तैयारी कर रहा होता है, नीचे से जो उनका जो रूट है वो नीचे तक बहुत दूर तक फैला देता है, इसलिए जो 4 साल के बाद जो ग्रोथ आता है उससे वो जो ट्री नीचे नहीं गिर जाता है, स्टेबल रहता है। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इससे हम अपना मोटिवेशन, हमारा कॉन्फिडेंस इस बिजनेस में रख सकते हैं। नंबर 4, नॉट टॉकिंग एनफ पीपल। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस का जो मेन रॉ मटेरियल है वो है ह्यूमन। तो हम अगर प्लास्टिक का इंडस्ट्री खोलते तो प्लास्टिक रॉ मटेरियल है, अगर हम कंप्यूटर का बिजनेस खोलते कंप्यूटर मेन रॉ मटेरियल है। तो इस तरीके से ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये कैसे बनता है, हमारा 5% एफर्ट एंड 95% एफर्ट हमारे नीचे जितने भी सारा लोग है उनका एफर्ट मिलाकर 100% एफर्ट। तो इस बिजनेस को हम अगर आगे बढ़ाना चाहते, এই বিজনেসে যদি আমরা সবাই একসাথে হাতে হাত দিয়ে এগিয়ে যেতে চাই, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर दिन हमें नए लोगों के पास जाना पड़ेगा। हमारे टीम में अगर फ्रेश ब्लड कंटिन्यूअसली आते रहेंगे तो ये जो बिजनेस का मोमेंटम अच्छी से बना रहेगा। हम देखते हैं कि इस महीने से फॉर एग्जांपल नवंबर महीने में हमारे टीम में 10 लोगों ने ज्वाइन किया है, दिसंबर में अगर वो 20 हो जाए तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन हो रहा है। ये जो लोगों का ज्वाइनिंग, ये हम हमारा रिपोर्ट जो आता है कंपनी का वैसे चेक कर सकते, तो देख सकते कि हमारे टीम में हर महीने कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं, कितने सारे लोग एक्टिव हो रहे हैं। ये सभी हम अपने जो मोदी केयर का जो वेबसाइट में जो रिपोर्ट आता है वहां से हमें मिल सकता है। इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस वो हर दिन अच्छा हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट, नाइदर अ बोरोवर नॉट अ लेंडर। यहाँ पर जो बिजनेस है इसमें आप किसी को क्रेडिट मत दीजिए। ये जो बिजनेस है ये उधारी का बिजनेस नहीं है, এই বিজনেসটা হচ্ছে ধারের ব্যবসা নয়। তো সুতরাং আপনি যদি হচ্ছে লোককে টাকা দেন তাহলে মেবি আপনার টাকা হচ্ছে লস হতে পারে, আপনার সাথে হচ্ছে লোকের সম্পর্কও খারাপ হয়ে যেতে পারে। देखा जाता है कि पैसों का जो रिलेशन होता है वो मजबूत रिलेशन नहीं होता है। आप जब कभी भी पैसा देने से मना कर देंगे तो उस लोग के साथ आपका जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। तो ये जो बिजनेस आप ट्रांसपेरेंटली मेंटेन कीजिए। आप अगर एक डीपी ओनर है तो डीपी बिना उधारी का चलाइए और किसी से उधार ना ले और किसी को उधार ना दे। ये चीज आप अगर टीम में फॉलो करेंगे तो टीम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट, प्रोकास्टिनेटिंग। ये हमारा बहुत ही पुराना रोग है। ये हमारा रोग नहीं है, ये हमारा दिमागी रोग है। तो मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। से फॉर एग्जाम्पल हम में से कितने लोग होंगे जो मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहते हैं? কারা কারা আছে যারা হচ্ছে সকালে উঠতে ভালোবাসি? মেবি সবাই বলবে আমরা ভালোবাসি। और यहाँ पर कितने सारे लोग होंगे जो मंडे जब आ जाता है तो लोग सोचते हैं वाह मंडे आ गया है, हम अपना ऑफिस जो हंसी खुशी ज्वाइन करेंगे। किसी का नहीं मन होता है, पर जब फ्राइडे आ जाता है तो लोगों के मन में ये रहता है कि सैटरडे संडे आएगा, वीकेंड में हम मजा करेंगे। पर मंडे किसी को पसंद नहीं आता है, এটা আমাদের সবারই রোগ। কিন্তু সে ফর এক্সাম্পল সকালে আপনারা কেউ উঠতে পারছেন না, কিন্তু আপনার যদি কোনো জায়গায় যাওয়ার থাকে, যেমন আমাদের কালকে একটা হচ্ছে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান আছে, তো সকালবেলা উঠতে হবে 4টের সময়। यहाँ पर जितने भी सारे लोग होंगे जिस किसी को अगर बाहर किसी जगह पे घूमने जाने की बात होगा तो 4 बजे से पहले अलार्म क्लॉक के बजने से पहले ही लोग उठ जाएंगे। क्यों? उस जगह में जाने के लिए अपने मन में होगा हाँ जाके बहुत मजा आएगा। हम जितने भी सारे लोग स्पेशली इंडियंस जितने भी सारे लोग हैं वो काम करने में मजा नहीं आता है। हम जो कोई भी काम करते वो अगर मजा करके एंजॉय करके करेंगे तो वही काम हमें अच्छा लगने लगता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन हम कभी ना करें। ये जो बिजनेस है ये बहुत ही सीरियस बिजनेस है
आप जितने सीरियसनेस के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, ये जो रिटर्न है वो आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करेंगे। टेकिंग रिजेक्शन टू द हार्ट। এখানে অনেকে আছে যে প্রসপেক্ট লিস্ট বানাएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाते। उन्होंने खुद ज्वाइन किया, बिना प्रोडक्ट यूज करके ही बहुत जल्दी अपने जान पहचान के लोगों के पास चले जाते हैं कि इस बिजनेस में हमने ज्वाइन किया है और आप भी ज्वाइन कीजिए। तो ऐसी तरीके से हम अगर काम करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ऑटोमेटिकली ज्यादा रिजेक्शन आएगा। अगर हम अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल पहले सेल्फ यूज करते हैं, मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता चला है, सेल्फ यूज करने के बाद शेयर कर रहे हैं, उसके बाद लोगों को बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा मुझे प्रोडक्ट यूज करने के बाद। उसके बाद शेयर करने के बाद लोगों को अगर ज्वाइन करेंगे, ये अगर हम फॉलो करेंगे तो देखेंगे रिजेक्शन कम आएगा। और शेयर करने से पहले जरूर से जरूर हमें एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना चाहिए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट मिनिमम 200 का होना चाहिए। अगर मेरे लिस्ट में लोगों का नाम कम होगा तो अगर 2 4 5 लोग अगर हमें ना कर देंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाएगा। तो ये जो बिजनेस, यहाँ पर रिजेक्शन बहुत ही नॉर्मल है। जितने भी सारे लीडर्स है वहाँ उन लोगों को सभी को बहुत सारे रिजेक्शन मिला होगा। हमने जितने सारे रिजेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, पर लीडर्स लोग इतने सारे रिजेक्शन हैंडल किए होंगे। पर ये बिजनेस में अगर कोई রিজেকশন को দিল में पकड़ के बैठ जाते, ভাবলাম যে আমাকে না বলে দিয়েছে তাহলে এই বিজনেসটা আমার জন্য নয়, তাহলে কিন্তু আমরা কেউই এই বিজনেসটা থেকে হচ্ছে সাকসেস পাবো না। তাই আমাদের হচ্ছে রিজেকশন নিলে মনে করতে হবে এটা আমরা প্র্যাকটিস করছি, ফিল্ডে প্র্যাকটিস করছি এবং এরপরে আমার যা ভুল হচ্ছে সেটাকে আমি সংশোধন করে নিয়ে আরো বেটার ওয়েতে পারফর্ম করব। আমাদের মধ্যে সেই এনথুজিয়াজম মেনটেন করতে হবে এবং আমরা যদি ভাবি যে এটা একটা রিয়েল বিজনেস এবং এখানে আমার मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करा আছে, जैसे कि हम सोच लेते हैं कि हम अगर एक शॉप ओपन किए हैं और पहले साल में वहां पर कोई मुनाफा नहीं आया है, 10 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है और कोई मुनाफा नहीं आया है, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट साल ट्राई करेंगे क्योंकि हमारा बैंक लोन है 10 लाख का। पर इस बिजनेस में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। हम अगर सोचेंगे कि इस बिजनेस में हमारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड है तो हम इस बिजनेस को सीरियसली लेंगे, रिजेक्शन होने के बाद भी फिर भी कोशिश करेंगे एंड सिस्टम को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये चीज हम सभी को जरूर से जरूर याद में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। क्या हो जाता है कि हमारे इंडिया में सभी एक्सपर्ट्स है। आप अगर देखेंगे कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो हम कभी बैट किए भी नहीं है, पर मैं बताऊंगी कि विराट कोहली को ऐसे बैट पकड़ना चाहिए, इन्होंने ठीक तरह से गेंद डाला नहीं होगा इसलिए रन नहीं आया। तो ऐसा बहुत सारे लोग अपने ओपिनियन लोगों के सामने पेश करते। तो हम जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते उसी तरीके से सेम चीज हो जाता है कि लोगों के पास इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है। अगर आधा अधूरा इंफॉर्मेशन जिस किसी के पास है, आप अगर उनको जाके पूछेंगे कि ये बिजनेस हमें कैसे करना चाहिए तो वो नॉन एक्सपर्ट की तरीके से ही आपको एडवाइस करेगा। से फॉर एग्जाम्पल आपने ये बिजनेस को ज्वाइन किया है और आप घर में जाके आपके फैमिली से पूछ रहे कि ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं, आपके ताऊ जी को पूछ रहे, आपके मौसा जी को पूछ रहे, उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत सक्सेस पाए होंगे, पर इस बिजनेस में उनका अगर कोई तजुर्बा नहीं है तो वो आपको ठीक तरीके से गाइड नहीं कर पाते। जैसे कि अगर आपका जो कहीं से गिर के आपको अगर चोट आ जाए, आपको स्टिचिंग की अगर जरूरत पड़े, आप कहाँ जाएंगे? একটা মুচির কাছে যাবেন না, ডেফিনেটলি একটা ডক্টরের কাছে যাবেন যে আপনাকে প্রপার ওয়েতে হচ্ছে স্টিচ করে দিতে পারবে। তো সেই রকমই আপনি নন एक्सपर्टদের কাছে না গিয়ে যারা नेटवर्क मार्केटिंग है, जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में
सक्सेस जिन किसी को ऑलरेडी मिल चुका है उनसे जाके आपको एडवाइस लेना चाहिए। नेक्स्ट, टॉकिंग नेगेटिव, ये हमारा पुराना आदत है। नेगेटिविटी हम लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो जाता है, जिस किसी भी जगह पर हम देखते हैं कि कोई भी नेगेटिव डिस्कशन हो जाता है तो हमारा इंटरेस्ट वहां पर चला जाता है। ऑटोमेटिकली हम सुनना चाहते हैं कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही कॉमन है। तो आप अगर आपके टीम में नेगेटिव बात करेंगे, आपको क्रॉस लाइन को नेगेटिव बात करेंगे, तो ये चीज आपके पास घूम के आएगा। ये आपके बिजनेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। से फॉर एग्जांपल, আপনি একটা ডিপি ওনার, তো ডিপি ওনার হয়ে আপনি আপনার বিজনেস করছেন, আপনি দেখছেন যে আপনার ডিপি থেকে আপনার অনেক ক্রস লাইনেও হচ্ছে প্রোডাক্ট পারচেস করে। এবার আপনি বলছেন যে আপনার ক্রস লাইনদের যে এই বিজনেসটা ভালো না, এই বিজনেসটায় হচ্ছে কিছু পাওয়া যায় না, ডিপি খুলেছি আমার কোনো হচ্ছে লাভ হচ্ছে না। এই জিনিসগুলো আপনি যত বেশি সার্কুলেট করতে থাকবেন, অটোমেটিক্যালি ওই ডিপিতে তো শুধু আপনার হচ্ছে ক্রস লাइन আসে না, আপনার हार्ट लाइन মানে আপনার टीम मेंबरরাও আসে। ये सारा इंफॉर्मेशन आपके नीचे जो टीम है उनके पास भी घूमते हुए चला आएगा। मैंने क्या कहा है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा स्प्रेड करता है। आप कोई भी चीज अगर नेगेटिवली बता देंगे किसी को, वो इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाएगा। तो जो चीज आप दूसरे के लिए अगर खराब सोचेंगे, वो चीज आपके पास ऑटोमेटिकली घूम के आएगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस है आपको पॉजिटिविटी स्प्रेड करना पड़ेगा, नेगेटिविटी का ये बिजनेस नहीं है। और आप अगर दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, आपके पास भी अच्छा ही घूम के आएगा। तो नो नेगेटिव टॉकिंग, क्रॉस लाइन के साथ भी नहीं, डाउन लाइन के साथ भी नहीं। अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत हो या कोई भी चीज को लेके कोई कंफ्यूजन हो, वो सारे इंफॉर्मेशन आप अपने अपलाइन के साथ या कंपनी पर्सनल के साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि ये हम नेगेटिविटी अगर नीचे बोलेंगे ये ठीक नहीं है। जो कुछ भी नेगेटिव अगर पूछना है या बताना है तो आपको हमेशा अपलाइन को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, नॉट मैनेजिंग टाइम, ये जो बिजनेस है या कोई भी काम है हमें टाइम में ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। এই বিজনেসটা আমাদের টাইম মেনটেন করে করতে হবে। प्लान द वर्क, वर्क द प्लान, इसका मतलब क्या है? अगर हम सोचते हैं कि हम पूरा दिन बहुत सारा काम करेंगे, पर वो जो काम है वो मैंने प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ है। मैंने क्या किया है कि से फॉर एग्जांपल आई एम अ हाउसवाइफ, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। আমি একটা হাউসওয়াইফ, আমার সারা দিনে বাচ্চা স্কুলে যায়, আমার হচ্ছে হাজবেন্ড হচ্ছে অফিসে যায়, আমার হচ্ছে মোদি কেয়ারের কাজও করতে হবে। তো এই রকম অনেকগুলো কাজ আছে। তো প্রত্যেকদিন সকালে উঠে আমরা যদি একটা সাদা পেপারের মধ্যে আমার সারাদিনে কি কি কাজ আছে সেটা যদি পরপর পরপর করে যদি লিখে রেখে দিই, তাহলে আমার কিন্তু কাজে ভুলও হবে না এবং প্রপার ওয়েতে আমরা কিন্তু প্রায়োরিটাইজ করতে পারবো কোন কাজটা আমরা কখন করবো এবং কত তাড়াতাড়ি করতে পারবো। तो हमने अगर अपने काम को अच्छी तरह से प्लान किया और उसी प्लान के हिसाब से उस काम को एग्जीक्यूट किया तो अच्छी तरह से एक रिजल्ट पा सकते। तो ये चीज हमें किसी भी फील्ड में, वो आप नेटवर्क मार्केटिंग करे या आप एक स्टूडेंट हो या आप कोई बिजनेस कर रहे या कोई जॉब में हो, पूरा दिन का जो आपका काम है वो चीज आपके पास अगर पेपर में लिखा हुआ होता है, ये किसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपका जो इम्पोर्टेंट काम है आपके आंखों के सामने रहेगा, तो आप ठीक टाइम में वो काम पूरा कर सकते हैं। तो ये चीज हम सभी को फॉलो करना चाहिए। ये था 10 कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद। अपने आप से कुछ फॉर्मूला इन्वेंट कर देते हैं, जो टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है वो फॉलो नहीं करते, इससे हमारा जो सक्सेस है वो डिले हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि 2-3 साल के लिए ये बिजनेस को हमें ध्यान में रखते हुए मन से करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगा। पर हम अगर सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, ये जो सक्सेस मिलना वो डिले होता रहेगा। तो हम कोई भी नहीं चाहते डिले करके हमें सक्सेस मिले। 2-3 साल के अंदर आपको अगर सक्सेस मिलना, आप अगर चाहते हैं कि सक्सेस आपको मिले, तो आप ये 10 चीज कभी ना फॉलो करें
और अपने टीम को भी सिखाए ये चीज ना करे। तो हम नेक्स्ट चले जाते हैं होम मीटिंग के ऊपर। तो आज के डेट में क्या होता है, होम मीटिंग बहुत ही एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। कोरोना के पैंडेमिक के दौरान ये होम मीटिंग थोड़ा कम हो रहा था, जूम के ऊपर हो रहा था, पर अभी फिजिकल मीटिंग स्टार्ट हो गया है तो लोग होम मीटिंग कर रहे। और देखा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी सारा बिजनेस होता है उनमें से 80% जो बिजनेस है वो होम मीटिंग से आता है। क्यों होता है? होम मीटिंग जो है वहां पर आपको मौका मिलता है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ 1-to-1 बातें करने का, उनके मन में क्या चल रहा है वो आपको समझने में इजी होता है, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है, लोग कम रहता है तो 1-to-1 कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। ये जो होम मीटिंग होता है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है। आपके घर में भी हो सकता है, आपके प्रोस्पेक्ट के घर में भी हो सकता है, आपका जो कोई टीम मेंबर उनके घर में भी ये होम मीटिंग कर सकते हैं। ये होम मीटिंग करने के लिए कोई कॉस्ट की जरूरत नहीं होता है, ये घर में होता है तो कॉस्ट की कोई बात ही नहीं है, तो फ्री में हो जाता है, डुप्लीकेबल है, पैसा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा इजी है, किसी के घर में भी अरेंज किया जा सकता है। तो ये चीज टीम में बहुत ज्यादा डुप्लीकेबल हो सकता है और प्रोडक्टिव भी है। जैसे कि मैंने कहा कि 80% বিজনেস 80% বিজনেস হচ্ছে হোম মিটিং থেকে আমাদের উঠে আসে। তাই আমাদের টিমে প্রত্যেককে এই হোম মিটিং করা উচিত এবং হোম মিটিং হচ্ছে টিমের যারা আমাদের डाउनलाइंस আছে, যারা जो भी लोग हमारे टीम में नए जुड़ रहे सभी को होम मीटिंग कैसे किया जाता है वो सिखाना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट दिन एक सेशन करूंगी कि होम मीटिंग में कैसे हम होम मीटिंग करें जिससे आप बहुत ही कम टाइम में एक ज्यादा अच्छा रिजल्ट पा सकते। तो इसके ऊपर हम 2 सेशन है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। तो आज हम देख लेते कि होम मीटिंग के दौरान हमें क्या क्या तैयारी करना चाहिए और इस तैयारी के साथ हम कैसे इस मीटिंग को सक्सेसफुल कर सकते। नंबर 1, प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। होम मीटिंग हो या कोई भी काम हो, हम सभी को पता है कि हम अगर প্রিপারেশন के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो পারফেক্ট हो जाता है। তো এখানে কি কি প্রিপারেশন আমাদের নিতে হবে? সিটিং, বসার জায়গা আমাদের দেখে নিতে হবে, ডিসপ্লে, আমাদের প্রোডাক্টের ডিসপ্লে ঠিকঠাক আছে কিনা, কারণ যেখানে হোম মিটিং হচ্ছে সেখানে যদি প্রোডাক্ট না থাকে তাহলে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করছি সেটা বোঝা যাবে না, প্রোডাক্ট আমরা শেয়ার করতে পারবো না, আমরা ডেমো দেখাতে পারবো না। তো এই জন্য হচ্ছে একটা ডিসপ্লে দরকার, डेमो मटेरियल रेडी रखते হবে। देखा जाता है कि हम बिजनेस तो ज्वाइन कर गए बहुत दिन पर अभी तक डेमो किट नहीं बना है, तो ये चीज टीम में डुप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा जो डेमो किट वो पहले रेडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्रेजेंटेशन देने से पहले खुद का तैयारी ठीक तरीके से हुआ है या नहीं ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सीटिंग के बारे में क्या बता रही हूँ, से फॉर एग्जाम्पल आप एक होम मीटिंग में गए हैं, आपका जो चेयर वो आपके सामने ही होना चाहिए। आप अगर स्पीकर हो तो आप सामने बैठेंगे और जितने सारे लोग आपको सुनने वाले सभी को सामने बैठे होना चाहिए। अगर अगल बगल में बैठेंगे या पीछे बैठेंगे तो क्या होगा, आपके साथ आपका जो प्रोस्पेक्ट है या आपका जो टीम मेंबर है उनका आई कांटेक्ट नहीं बनेगा। तो होम मीटिंग का जो कन्वीनियंस है कि आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों के आंख में देख के आप जवाब दे सकते हैं, वो चीज ठीक से नहीं होगा। तो सीटिंग ऐसा होना चाहिए आप सभी के आई में कांटेक्ट कर सकते हैं, ये चीज देख लेना चाहिए। डिस्प्ले एक मैजिक कॉर्नर का डिस्प्ले होना चाहिए, डेमो मटेरियल रेडी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी के घर में डेमो करने के लिए गए हैं, आप सोप का डेमो दिखा रहे और आपके पास नमक नहीं, ये चीज ना होना चाहिए। और से फॉर एग्जांपल आप स्टेरी क्लीन का डेमो दिखा रहे, आपके पास उजाला नहीं है या चम्मच नहीं है, आपके प्रोस्पेक्ट से आप पूछ रहे एक चम्मच दीजिए, एक ग्लास दीजिए, ये चीज ना होना चाहिए। आप जो जिस किसी का भी डेमो दिखा रहे पूरा चीज आपके पास रेडी होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इजी होना चाहिए और कोई भी इजीली आपका जो प्रेजेंटेशन वो समझ जाए, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। যত ইজিতে আপনি বোঝাতে পারবেন ততই বেশি কিন্তু আপনার টিমে লোকের জয়েন করার চান্सेस বাড়বে। नेक्स्ट, प्रॉपर वेलकम, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो एनर्जी लेवल
आपका फास्ट इंप्रेशन के साथ लोगों के ऊपर पड़ता है। तो आप कैसे लोगों को वेलकम कर रहे, कैसे ग्रीट कर रहे और गेस्ट को कैसे अपने घर में बैठा रहे, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर में होम मीटिंग के लिए गए, पहली बार जाने के बाद आप नमस्ते कीजिए या हैंडशेक कीजिए, उसके बाद आप प्रॉपरली ग्रीट करने के बाद अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ये चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अगर होम मीटिंग हो रहा है तो आपको गेस्ट को घर में वेलकम करने के लिए घर के सामने से आप वेलकम कर सकते, आइए ठीक तरीके से बैठिए, वाटर ऑफर कर सकते आने के बाद। और जब वो लोग घर से जा रहे, आप डोर तक उनको छोड़ के आ सकते। ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, पर ये चीज हम अगर करेंगे तो लोग सामने वाले लोगों के मन में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, এডিফাই দ্য স্পিকার। ये हम लोग भूल जाते, এটা কি হয় অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। সে ফর এক্সাম্পল, किसी भी होम मीटिंग के लिए मैंने अपना আপলাইন को ইনভাইট किए, আমার আপলাইন এসছে কোনো একটা হোম মিটিং করার জন্য, বা আমি আমার আপলাইনকে নিয়ে কোনো একজনের বাড়িতে হোম মিটিং করতে গেছি। দেখা যাচ্ছে যে जे हमारा प्रोस्पेक्ट, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो कोई बैंक मैनेजर है या कोई डॉक्टर है, मैं अपने अपलाइन के सामने उस प्रोस्पेक्ट के बारे में इतना सारा बड़ा चढ़ा कर बोल रहे कि ये जो भाई साहब है ये बहुत ही एक अच्छे प्रोफाइल में काम करते, बैंक में है, बहुत ज्यादा कांटेक्ट है। ये सब चीज अगर हम बताएंगे तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ, और सामने वाला जो इनका जो अपलाइन आया है तो इसका कोई महत्व नहीं है। এটা কিন্তু করলে হবে না। আমি আমার আপলাইনকে নিয়ে গেছি, সে হচ্ছে আমার যে গেস্ট আছে তাদেরকে হচ্ছে বলবে। তো সুতরাং আমি যদি প্রপার ওয়েতে আপলাইনকে ইন্ট্রোডিউস না করি, তো এই বিজনেসে আপলাইনের যে রোলটা আছে সেটা কিন্তু আমরা দেখাতেই পারলাম। আর আমি যদি সঠিক ওয়েতে আপলাইনকে পরিচয় না করাই, इन फ्यूचर में देखा जाएगा हम भी ये जो रेस्पेक्ट हमें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज ही डुप्लीकेबल होगा। क्योंकि हम खुद जो करेंगे वो सामने वाला जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो भी सीखेंगे कि ऐसे ही करना पड़ता है। और अपलाइन को ठीक तरीके से एडिफाई करने से क्या होगा कि लोग सोचेंगे कि ये जो आए हैं हमें समझाने के लिए, इसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है इनके पास और ये कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो कैसे आप एडिफाई करेंगे, एक छोटा सा डेमो हम करके दिखा रहे हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम देवोद्युति सरकार है, मैं आप लोगों के साथ आज होम मीटिंग के लिए आई हूँ। तो मेरे साथ मेरा अपलाइन है, ये बहुत ही बिजी इंसान है, ये मोदी केयर के जो प्लेटफॉर्म में प्लैटिनम डायरेक्टर, जो कोई भी टाइटल हो प्लैटिनम डायरेक्टर के टाइटल में है। ये फॉरेन ट्रिप अचीव किए हैं, इनके पास मोदी केयर से कार्ड भी है। तो ये बहुत ही बिजी इंसान है। आप से फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, आप मेरे बहुत ही करीबी है, और आप जैसे स्पेशल इंसान को समझाने के लिए मेरा जो अपलाइन है स्पेशली आए हैं। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अच्छी तरह से समझाए, इस कंसेप्ट को आप सुनिए समझिए, उसके बाद हम लोग कैसे आप काम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसी तरीके से आप अगर पहले ही सर के बारे में, आपका अपलाइन के बारे में अच्छे से बताएंगे तो लोग आपके अपलाइन को इम्पोर्टेंस देके सुनेंगे और आपका जो होम मीटिंग वो सक्सेसफुल रहेगा। वो उन्होंने जो अचीव किए है, उनका जो टाइटल है, ये सब मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अवॉइड डिस्ट्रक्शन। अगर डिस्ट्रक्शन रहेगा तो आपका जो होम मीटिंग वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पेट्स हो गया या किड्स हो गया या टीवी म्यूजिक, ये सब से आपको दूर ही रहना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, बैकग्राउंड में अगर टीवी चल रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि टीवी ऑफ करने के लिए, या सभी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैं 30 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन करूंगी, ये 30 मिनट सभी लोग अपना जो फोन है वो म्यूट कर लीजिए। लोगों को बोलने से पहले अपना जो মোবাইল ফোন है, আপনার যে ফোনটা আছে সেটাকে আপনি সবার সামনে মিউট করে দিন, সাইলেন্ট করে দিন, সাইলেন্ট করে দিন। তাহলে আপনি যখন সাইলেন্ট করছেন তাহলে অন্যরাও তখন সাইলেন্ট করে নেবে। তো এই জিনিসটা আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে।
নেক্সট, কিপ ইট সিম্পল। এটা কিন্তু ভীষণই ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি কোনো একটা জিনিসকে কমপ্লিকেটেড করে লোকের সামনে তুলে ধরি, লোকেরা বুঝতে পারবে না। তাই আমাদের সিম্পল ওয়েতে প্রেজেন্টেশন করতে হবে। পাওয়ার ওপেনিং, সিম্পল প্রেজেন্টেশন, এবং মাথায় রাখতে হবে যে সামনের লোকটা কিছু জানে না এখন। তো আমরা যত সিম্পলি ওনাকে এই কনসেপ্টটা তুলে ধরতে পারবো, আমার চান্সেস অফ জয়নিং কিন্তু বেড়ে যাবে। তাই এটাকে মাথায় রাখতে হবে। নেক্সট, কিপ ইট শর্ট। আমাদের কিন্তু 30 মিনিট রুল ফলো করতে হবে। আমাদের जो যেই প্রেজেন্টেশনটাই আছে, जो भी हम बताना चाहते, अपना जो प्रेजेंटेशन ये है वो 30 मिनट के अंदर खत्म करना पड़ेगा। नंबर 7, नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अगर रिफ्रेशमेंट अफोर्ड कर सकते तो भी आप रिफ्रेशमेंट की अरेंजमेंट ना कीजिए, क्योंकि से फॉर एग्जांपल आपके पास रिफ्रेशमेंट अरेंज करने की पैसा है, पर आपका जो नया मेंबर है वो अपने घर में होम मीटिंग कभी नहीं रखेंगे। से फॉर एग्जांपल उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो रिफ्रेशमेंट हम नहीं बोलेंगे कि रिफ्रेशमेंट आप अरेंज कीजिए, और रिफ्रेशमेंट टीम में किसी को अरेंज करने के लिए भी रिक्वेस्ट ना करें। ये चीज हमको फॉलो करना पड़ेगा। और रिफ्रेशमेंट के दौरान हमारे मीटिंग के बीच में एक गैप भी आ जाता है। से फॉर एग्जांपल चाय आ रहा है, खाना आ रहा है, স্টার্টার आ रहा है, तो लोगों का मन খানে के ऊपर चला जाएगा, খাওয়ার উপর চলে যাবে, এবং আপনার যে মিটিং এর ফ্লো আছে সেই ফ্লোটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। অ্যালাউ কোশ্চেন অনলি आफ्टर मीटिंग। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये आपके जो प्रोस्पेक्ट होंगे वो बहुत सारे लोगों का मिश्रण हो सकता है। से फॉर एग्जांपल 8-10 लोगों के साथ आप एक होम मीटिंग कर रहे, इसमें बहुत सारे डिफरेंट माइंड का पीपल हो सकते हैं। मीटिंग के बीच में आप अगर क्वेश्चन अलाउ करेंगे तो देखेंगे जो मीटिंग का जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। कोई अगर नेगेटिव कोई क्वेश्चन बोल देता है मीटिंग के बीच में, जो बाकी लोग हैं जो अच्छी तरह से सुन रहे थे उनका भी माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन करके बार बार इंटरप्ट कर रहा है, आप उनको बता दीजिए कि आपके मन में जितने सारे सवाल हो, हम इस मीटिंग को खत्म करने के बाद आपके साथ प्राइवेटली बात करने के बाद तो ही हम जाएंगे। तो मीटिंग के बीच में अगर कोई इंटरप्शन नहीं होगा तो आपका मीटिंग का फ्लो भी बहुत अच्छा रहेगा और आपका मीटिंग भी सक्सेसफुल हो जाएगा। पावर क्लोजिंग, ये जो बिजनेस है इसमें आप प्रेजेंटेशन ठीक से कीजिए, ये तो बहुत जरूरी है, पर क्लोजिंग बहुत ही क्रूशियल होता है। क्लोजिंग के दौरान आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको क्लोज एंडिंग क्वेश्चन करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल आप पूरा प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद ये चीज बोल सकते, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा, अभी ज्वाइन करने के लिए आप और क्या जानना चाहते। ये जो तीनों सवाल मैंने कहा ये सभी क्लोज एंडिंग क्वेश्चन है। प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा, ये दोनों में से एक चीज बोलने का ऑप्शन होता है। कोई बोल सकता है प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो तभी आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। प्लान अगर अच्छा लगा किसी ने कहा तो आप प्लान के बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकते। तो ये आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका माइंड सेटिंग के ऊपर आपको अपना क्लोजिंग चूज करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपका जो टीम में ज्वाइनिंग आता जाएगा। ये क्लोजिंग एक आर्ट होता है, ये कंटिन्यूअसली आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका क्लोजिंग जो टेक्निक वो बहुत ही अच्छा बेहतर होता जाएगा। नेक्स्ट, बैम फैम, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। आप अगर एक सक्सेसफुल नेटवर्कर होना चाहते तो आपका जो कैलेंडर है वो पूरी अच्छी तरह से प्लान होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप अगर इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे तो आपके पास 8 दिन है, सैटरडे संडे मिलाकर 8, तो वो 8 दिन पूरा बुक होना चाहिए। कौन से दिन किसके पास जाएंगे, किसके पास फॉलो अप के लिए जाएंगे, और किसी भी मीटिंग से आप और भी मीटिंग का लीड ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आप 8-10 लोगों के साथ कोई आपके प्रोस्पेक्ट के घर में होम मीटिंग कर रहे, तो मीटिंग खत्म होने के बाद आप एक चीज कर सकते हैं कि आज जैसे कि मीटिंग हुआ या ऐसी तरीके से मीटिंग आपके घर में, अब जो कोई आपको मीटिंग में इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपके घर में
अगर अरेंज किया जाता है, যদি অ্যারেঞ্জ করা হয় তাহলে আপনি কি 5-6 জন লোককে ইনভাইট করতে পারবেন? তো সে যদি হ্যাঁ বলে তো অটোমেটিক্যালি আপনি কিন্তু তার পরিচয়ের থ্রু দিয়ে তার প্রসপেক্ট লিস্ট থেকে আপনি কিন্তু মানুষজন পেয়ে যাবেন এবং একটা মিটিং থেকে আরেকটা মিটিং কিন্তু আপনি বুক করতে পারবেন। तो ये जो 10 जो फॉर्मूला मैंने बताया, जो होम मीटिंग की तैयारी के लिए जरूरत है, ये चीज हम अगर करेंगे तो एक अच्छा होम मीटिंग हम अरेंज कर पाएंगे। আর নেক্সট দিন আমরা ডিসকাস করব যে কিভাবে আমরা যে এই 30 মিনিটের কথা বলেছে, এই 30 মিনিট টাইমটাকে সঠিক হইতে কিভাবে আমরা যদি ডিজাইন করি, যে আমাদের যে লিড গুলো আছে বা আমাদের যারা প্রসপেক্ট আছে সেটা ক্লোজিং যাতে বেটার হয়, সেই 30 মিনিটটা কিভাবে করব সেই প্রেজেন্টেশনের প্রসিডিওর নিয়ে আমরা কিন্তু নেক্সট মিটিং এ আলোচনা করব। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে এতক্ষণ ধরে শোনার জন্য। আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের আজকের এমসি, ওয়ান্ডারফুল এমসি অরূপ দাকে হ্যান্ড ওভার করতে। অরূপ দা, তুমি হচ্ছে এই মিটিংটা হচ্ছে ক্লোজ করে দাও। এবং তার সাথে সাথে অরূপ দাকে हैंड ओवर करार आगे मैं एक चीज बोलते चाहिए, हम लोगों का जो ऑफिस में मीटिंग है 19 को एक मीटिंग है, 19 तारीख আমাদের একটা মিটিং আছে পার্ক স্ট্রিট অফিসে, যেখানে আমরা হচ্ছে ওয়ান্ডারফুল একটা সেশন অ্যারেঞ্জ করেছি, যেখানে ফার্স্টে হবে হচ্ছে বিওএম, যেখানে আপনি আপনার নিউ গেস্টকে নিয়ে আসতে পারেন। তারপরে আমাদের একটা ফেশিয়াল ডেমনস্ট্রেশন হবে এবং তারপরে আমাদের শীতকাল এসে গেছে বা হচ্ছে আমাদের স্কিন রিলেটেড যা বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ে ভুগছি, তো তার একটা হচ্ছে কুইক সেশনও আমরা অ্যারেঞ্জ করেছি। এই ওয়ান্ডারফুল সেশনটা হচ্ছে কেউ মিস করবেন না। যারা কলকাতা এবং সারাউন্ডিং থেকে আছেন তারা ডেফিনেটলি পার্ক স্ট্রিটে 3টে থেকে 3:30-এর মধ্যে পৌঁছে যাবেন এবং এই মিটিংটাকে আমাদের সাকসেসফুল করতে হেল্প করবেন। তো ওভার টু অরূপ দা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো থ্যাংক ইউ দেবদূতি ম্যাম, অসাধারণ সেশন, আমাদের অনেকটা উপকার করবে যে আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এবং আমরা প্রত্যেকে জানি, প্রত্যেকে নোট করেছি এবং সেভাবেই আমরা এগিয়ে যাব। তো দেবদূতি ম্যামের জন্য সবাইকে বলবো একটা ক্লাপস দেওয়ার জন্য, এত সুন্দর একটা ট্রেনিং সেশন আমাদের উপহার দিলে। আর যেটা দেবদূতি ম্যাম লাস্ট কথাটা বলছিলেন যে পার্ক স্ট্রিট অফিসের ট্রেনিং, তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস প্রতিনিয়ত আজকে অনেকের কাছে অনেক সমস্যা আসে যে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি, এটা এই বলছে, অনেকে বলছে যে হ্যাঁ প্রোডাক্ট ভালো দাম বেশি, তো এটসেট্রা বিভিন্ন রকম কোয়েশ্চেনের সম্মুখীন আমরা হচ্ছি। তো এই প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার এক একটা সেশনে শুধুমাত্র কমপ্লিট হতে পারে না। তো আমাদের প্রতিনিয়ত, অর্থাৎ বিজনেস করতে গেলে তো শিখতে হয়, তো আমরা শিখছি, তাই যে কোনো একটা কাজ করতে গেলে আমাদের কিছুদিন শিখতে হয়। তো সেই শেখাটা আমাদেরকে কন্টিনিউয়াস রাখতে হবে থ্রু জুম এবং থ্রু অফিস, আমাদের যে ট্রেনিং সেশন গুলো অর্গানাইজ করছে ওয়ান টিম 6টা মাস কেউ যদি কন্টিনিউয়াস জুম এবং আমাদের ট্রেনিং অফিস গুলোকে মেনটেন করে, তাহলে গ্যারান্টি দিচ্ছি খুব কম সময়ে আমরা প্রত্যেকের স্বপ্নগুলোকে পূরণ করতে পারবো। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাই এত সুন্দর কোঅপারেট করার জন্য। সো উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট। জয় হিন্দ।